السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے یوٹیوب کے متعلق میرا مین ٹاپک ہے، تو پلیز ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور ساتھ ہی مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو کچھ یوٹیوب کے متعلق بتانا چاہ رہی ہوں جو ہم یوٹیوب کے اوپر 4 غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کون کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو چینل ہے گرو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا چینل اوپر مطلب جانے کے بجائے نیچے مطلب آنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہوتا ہے اس کی ویلیو، اور یہ اس طرح ہمارا جو چینل ہے وہ اتنی جلدی مونیٹائز نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد فوری ہی آپ اپنی ویڈیو کا لنک کاپی کرتے ہیں، گروپس میں سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک کے اوپر، میسنجر، واٹس ایپ، جو بھی آپ اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے ویڈیو کا لنک کاپی کرتی تھی اور فوری میں نے نا کچھ گروپس مطلب لیے ہوئے تھے گوگل سے، مطلب نکالے ہوئے تھے، پاکستان جو بھی ڈراموں کے ہو گئے جو بھی ہیں، میں نے اس طرح کے کافی 7-8 گروپ جوائن کیے ہوئے تھے۔ تو ان گروپس میں اپنا لنک سینڈ کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے مطلب کہ بار بار میں نے سینڈ کرنا، میرا چینل آگے تک گرو نہیں کیا۔ اس طرح میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ کبھی میسنجر کے اوپر گروپ تھے کافی، لیکن گروپ بہت ہی گندے تھے، لیکن میں اب بول کے نہیں بتا سکتی کہ وہ کس طرح کے گروپس تھے، لیکن یہ ہے کہ انتہائی شرم والے ہی گروپ تھے۔ تو بس مجھے یہ تھا کہ میرا چینل جلدی سے جلدی مجھے سبسکرائبر مل جائے، میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے، اسی لالچ میں نے نا بار بار میں نا لنک کو بھی کرنے اور ان گندے گروپس میں میسنجر کے اوپر سینڈ کر دیتی تھی اپنا لنک کو بھی کر کے۔ تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے نا ویڈیو نہیں میری دیکھتے تھے، بس صرف یہ ہے کہ کچھ لڑکے جس کو میں نے بولا ان کو پتا ہونا یا یہ لڑکی ہے یا میری ویڈیو نہیں دیکھتے تھے، بس وہ مجھے جا کے سبسکرائب کر دیتے تھے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب دیکھتا ہے کہ اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اتنے اس کے لائک اور ویوز نہیں ہیں جتنے اس کے سبسکرائبر ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا چینل جو ہے نا وہ گرو نہیں کرتا، یوٹیوب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سبسکرائبر خرید رہے ہیں۔ تو اگر مطلب ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں خود سبسکرائب کر رہے ہیں، اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں، لائکس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سبسکرائبر کا تو کیا ہے، وہ تو مطلب اتنے زیادہ نہیں ہوتا، اس کا ٹارگیٹ تو چلو جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ واچ ٹائم ہمارا کیسے پورا ہو۔ تو ہم سبسکرائبر بولتے ہیں لوگوں کو سبسکرائب کریں، تو یوٹیوب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مطلب کہ خرید رہے ہیں سبسکرائبر، تو ہماری کوئی ویڈیو تو دیکھتا نہیں ہے، بس سبسکرائب کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یا تو یہ ہونا کہ ہماری ویڈیو بھی دیکھیں جو ہم اپلوڈ کریں، ریگولر جو بھی ہم دن میں ہر روز اپلوڈ کرتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو فل واچ کریں، ہمیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا، بس سبسکرائب کیا احسان کر دیا، اور کچھ لوگ کر کے سبسکرائب اس کے بعد ہمیں کچھ دنوں کے بعد انسبسکرائب کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فالو کر کے انفالو کر دینا، یہ تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا، یہ کہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا ہے، تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آج ہمارا 100 سبسکرائبر ہو گئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر مطلب 60 پر آ جاتے ہیں کہ سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا چینل جو نا ایک ساتھ پر نا ڈیڈ ہونے والا ہی حساب ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا چینل کس طرح ڈیڈ ہو جاتا ہے، کون سی مطلب کیا وجہ ہوتی ہے ان کی۔ تو دوسری غلطی یہ ہے کہ جب ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری جو وائس ہے، وائس کا وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں جیسے اب ویڈیو بنا رہی ہوں، اگر میرے پیچھے شور ہے، ویسے میرے پاس ابھی پنکھا چل رہا ہے، شاید آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہوگی، تو شاید ہو سکتا ہے آ بھی رہی ہو۔ تو کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، چلو ولاگ میں تو یہ ہوتا ہے شور شرابہ چل سکتا ہے کیونکہ وہ ولاگ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم یوٹیوب کے متعلق یا حدیث یا کچھ بھی کس چیز کے متعلق بتا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو ہمیں مطلب جو ہم بتا رہے ہیں وہ اگلے بندے کو سمجھ آئے کہ یہ کیا مطلب بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے، کچھ ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ تو نہیں نا ہم اپنی ادھر
लटरम पटरम्स बना रहे हैं और किसी बंदे को समझ ही नहीं आ रही। तो इस तरह ना आप ये काम किया करें, या तो अपना सेपरेट रूम रखें, अगर सेपरेट रूम वाला सीन नहीं हो सकता तो कुछ देर का आप टाइम मतलब एक टाइम टेबल बना दें कि हमने इस टाइम वीडियो बनानी है। तो उस टाइम पे आप अगर घर में किसी को बोल दें कि मुझे मतलब कुछ वीडियोस बनानी है तो कमरे में कोई भी ना आए, तो अकेले बैठ के वीडियो बना लें। तो अगर सेपरेट रूम है तो वहाँ पे बैठ के बना लें, या छोटे छोटे मतलब काफ़ी मैक वगैरह मिलते हैं तो वो ले लें वीडियोस बनाने के लिए। आवाज़ उनमें मतलब अगले बंदे को सही साफ आवाज़ सुनाई देगी, तो इस तरह कर लें। तो इस तरह ये है कि जब हमारी आवाज़ नहीं सही होती तो फिर लोग जिस तरह हम भी ऐसे ही करते हैं। हम यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चीज़ या कुकिंग वगैरह देख रहे हैं कुछ खाने पकाने की चीज़ें देखना चाहते हैं, तो हम देखते हैं अगर उसकी वीडियो के हमें अगर उस बंदे की आवाज़ ही नहीं आ रही, उसकी हमें समझ ही नहीं आ रही, तो हम मतलब क्या उससे सीखेंगे, क्या पता चलेगा क्या उसने बताया है। तो फिर इस तरह हम उस वीडियो को ना छोड़ देते हैं और आगे कोई और सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह ही होता है। तो मैंने पहली मेन चीज़ ये है कि कभी भी सब्सक्राइबर ना खरीदें, क्योंकि मैंने ये बड़ी गलती की है, मैंने सब्सक्राइबर खरीदे हैं, वॉच टाइम पूरा किया है, तो इस तरह करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये ही छोड़ दें खुदा के ऊपर कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। ये है कि कामयाब मतलब होता है बंदा अगर दिल से काम करे, ठीक है। ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कामयाबी के लिए ना थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन बंदा कामयाब ज़रूर हो जाता है। ये नहीं है कि जल्दी से बस हम अभी अभी गरम गरम ही मुंह में डाल लें, तो इस तरह नहीं होता। तो लिहाजा आप ये कुछ मिस्टेक जो मैं आपको बता रही हैं ये गलतियाँ आप ना किया करें। तो उसके बाद आपकी मेन चीज़ और है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो थंबनेल है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब थंबनेल बनाते हैं, अगर मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऐसे ही पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, समझ नहीं आती। तो थंबनेल ऐसा बनाएं कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है और आपकी वीडियो ऊपर आ गया, आपकी वीडियो के थंबनेल के ऊपर कुछ ऐसा लिखा ना कि उस बंदे को खींच रहा है अपनी तरफ, यही वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ है, यही देखूँ। तो थंबनेल ऐसा बनाएं और वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो कि अगला बंदा ना किसी और को भी बताए यार इसकी वीडियो देखें, इसकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, इसकी समझ भी आती है, बहुत अच्छे तरीके से बताता है या बताती है, ठीक है। तो ये आपने ना चीज़ का ख्याल रखना है। उसमें वीडियो में आपकी आवाज़ ठीक आ रही हो, क्वालिटी अच्छी हो, थंबनेल अच्छा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने यही करना है और इस तरह ये होगा कि अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी, आवाज़ ठीक हो रही, तो इस तरह आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, यूट्यूब आपको चैनल को प्रमोट करेगा, तो आपकी वीडियो आगे फेंकेगा और लोग देखेंगे। इस तरह आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी जल्दी जल्दी आपके दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह ही आपने करना जिस तरह मैंने बता दी है। और मैंने ना कुछ वीडियोस देखी हैं कि लोगों के थंबनेल अच्छे नहीं होते, वीडियो की आवाज़ मतलब उसमें वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, आवाज़ भी नहीं ठीक आ रही। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी मेरी आवाज़ नहीं ठीक आ रही होती थी। मैं पहले मेरा ब्यूटी टिप्स का चैनल था, तो उसमें मैं बोल कुछ रही होती थी और समझ किसी को आ नहीं रही होती ठीक से कि मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। बस यही पता चलता था कि मैं जो चीज़ लगा रही हूँ बस वही नज़र आ रही थी। तो आपने मैंने जिस तरह बताया आपने वैसे ही करना है। तो दूसरी मैं एक और मेन चीज़ बता दूं कि आपने अपने यूट्यूब चैनल की सेटिंग खुद से नहीं करनी, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि हमने सेटिंग कैसे की है। उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ देख के सेटिंग करें, वो किस तरह वाइटी स्टूडियो में जाके क्या क्या कर रहे हैं, कैसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन जो वो चीज़ बता रहे हैं ना उनकी तरह आप अपनी वीडियो अपलोड करें। थंबनेल कैसे बता रहे हैं, सेटिंग कैसे करनी है या शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करनी है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप खुद से सेटिंग करेंगे, खुद ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, हाँ ये जिस तरह हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ से क्लिक करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, अगर ऐसे करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी आप यूट्यूब के ऊपर टक्करें मारते रहें, आपका कुछ भी नहीं होगा। आपका जो यूट्यूब का चैनल है ना वो एक साइड एक कोने में पड़ा रहेगा, जितनी मर्जी आप टक्करें मारते रहें कुछ नहीं होगा उसका। तो लिहाजा आप ना
सेटिंग देखा करें यूट्यूब के ऊपर। लोग बता रहे हैं, यूट्यूबर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनकी जो चीज़ वो कह रहे हैं कि ऐसे करें, हमने ऐसे किया, तो उनकी बात को ना कॉपी करें। ये नहीं कि कॉपी करके वीडियो लगा दें, उनकी बात को फॉलो करें, जो वो बता रहे हैं उसको फॉलो करें। तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो और मैं मेन चीज़ और बता दूं कि कभी भी आपने किसी को कॉपी नहीं करना। अक्सर देखते हैं कि अगले बंदे की वीडियो को कॉपी कर लिया या किसी की वीडियो चुरा ली कॉपी करके, तो खुद के चैनल पे अपलोड कर दी। तो इस तरह लोग आप लोगों को, ये नहीं कि आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, आइटम पूरा जाएगा, नहीं। इस तरह आप लोगों को लोग बोलेंगे, ये आपको नाम दिया जाएगा कॉपी पेस्ट का, ठीक है। तो आपको कॉपी पेस्ट ही बोला जाएगा, क्योंकि आप लोग कॉपी कर रहे हैं, किसी की वीडियो चुरा के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो इस पर कॉपीराइट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और मैंने ये जो तरीका बताया है, ठीक है, ये जो गलतियाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये नहीं करनी, ये अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। और मैंने काफ़ी दिनों से अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन अब कर रही हूँ। मैंने कहा अपनी मतलब जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग ना करें। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं तो प्लीज़ लिहाजा इस तरह ना किया करें, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि आप अगर यूट्यूब चैनल बनाएं और आप देखते हैं कि अब हम कैसे वीडियो बनाए हैं, हमें कुछ समझ नहीं रही, हम क्या करें, क्या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें। तो माशाल्लाह से अल्लाह ने दिमाग दिया है, बहुत से आइडिया आते हैं, कुछ भी आइडिया आता है। ये नहीं है कि आपने अब चैनल का नाम रख दिया ब्यूटी टिप्स, तो आपने इस पर ब्यूटी टिप्स की ही वीडियो अपलोड करनी, ठीक है। आप चैनल इस नाम से बनाए कि उसके ऊपर आप कुछ भी अपलोड कर दें, ठीक है। अब मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोग हैं वो अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं, साथ में कुछ यूट्यूब के मतलब भी बता रहे हैं कि यार हमने ये सेटिंग की, हमने ये किया, वो किया। तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही करें कि जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया आए कि हमने ये मतलब इसके मतलब वीडियो बनाते हैं, या हदीस है, ये कुछ भी है कि हमारे जहन में ये आ रहे हम ये बताएंगे यूट्यूब के ऊपर, तो डायरी लें, उसके ऊपर लिख लें, ठीक है। उसके ऊपर आपने लिख लेना, लिखने के बाद आपने उसको मतलब रख लेना, जब आपको टाइम मिले आपने उस साइड पे वीडियो बना देनी है कि ये हमारे माइंड में आइडिया। फिर बंदे को मतलब नहीं याद रहता, भूल जाता है इंसान को कि हमने पता नहीं क्या सोचा था, किस पे वीडियो बनानी है। तो आपने डायरी लेनी, उसके ऊपर लिख लेना है, लिख के फिर जब सुबह दोपहर शाम जब आइडिया है लिखते जाएँ, जब टाइम मिले वीडियो बनाते रहें। तो इस तरह ना आप यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।